of this Campbell Sunshine Recorder, and or thereafter at 7 o'clock, like this summer, there are different type of cards are there for the summers and winters. ठीक ना, समर के लिए अलग से कार्ड है, विंटर्स के लिए अलग है, क्योंकि समर Yes. ड्यूरेशन इज लॉन्गर देन द विंटर ड्यूरेशन. तो विंटर ड्यूरेशन का शॉर्ट रहता है, सन जो समर का है दैट इज द लॉन्ग कार्ड इज देयर. तो क्योंकि अभी आप मॉर्निंग में एट यू मस्ट हैव सीन नाउ डेज एट 6 o'clock देयर इज सन डॉन. ठीक है Yes, ना, sir. और सनसेट सी लेट इन द इवनिंग एट 7 o'clock. So, 7:30. I mean that period from morning 7 o'clock and then in the evening up to 7 o'clock. तो we have to see, हमें ये देखना है कि Good morning, sir. हाँ मॉर्निंग मॉर्निंग तो ड्यूरेशन कितनी रही है ना, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द. इसमें अगर इफ वी गो बाय, अभी मैं आपको चलो थोड़ा सा दिखाई देता हूँ दैट जो ग्लोब है दैट कैम्पबेल सनशाइन रिकॉर्डर है. मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा उसको बता देता हूँ बंधन. So this is the practical manual, and I think you must be viewing this on your screen also. Yes, This sir. is the practical manual of introductory agrometeorology and climate change, which I have shared in your group also. तो यू कैन टेक प्रिंट ऑफ दैट. तो इसमें जो आपके सिलेबस में है, दिस इज ऑल टुगेदर टेलिंग योर सिलेबस. सिलेबस के हिसाब से ही है, जैसे लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर. आप जो थ्योरी पार्ट भी कवर कर रहे हैं ना, तो आई थिंक Yes. योर थ्योरी पार्ट आल्सो दीज डिफरेंट एटमॉस्फेयर लेयर्स, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोपॉज. तो ये भी ये देखो कि इवन देन इट कवर्स योर थ्योरी पार्ट आल्सो. मेरे ख्याल ये है आपके थ्योरी में भी. तो ये these are the different type of instruments which are being placed मतलब set in the observatory. तो इसमें ये देखो, ये जो है which I am talking with you, this is sunshine recorder. इस sunshine recorder की मैं बात कर रहा हूँ. I am talking about this sunshine recorder. और ये जो इसमें जो cards लगते हैं, these are the cards. ये लिखा है sunshine cards. ठीक है ना, तो ये आउटवर्डली अगर हम देखें तो ये है, दिस इज दी सनशाइन रिकॉर्डर. आगे हम डिटेल में भी दे लिखते हैं. और ये भी यू हैव सीन दिस अनीमोमीटर, है ना. अनीमोमीटर इज टू विंड दी टू मेजर दी विंड स्पीड. ठीक है ना, Yes. कप अनीमोमीटर भी इसको बोलते हैं. तो ये भी आप देख रहे हो. और दिस इज द विंड वेन. विंड वेन ये जो टू मेजर Direction. to see the wind direction, from which side the wind is coming and to which side this is blowing. So this is a wind vane. Yeah, these are the different instruments which are being set in the observatory. Or there, this is the single Stevenson screen. This is the single Stevenson screen. This is lying in our laboratory. Yeah, you must have seen, this is a white color box is there. So in that the different this instrument, this temperature recorders are being placed, like this minimum thermometer, maximum thermometer, then dry bulb thermometer, wet bulb thermometer. इसके अंदर है, but this we have not set in the observatory. और इसका हमने वो बनवा रहे हैं. We are making that stand where it is be placed. So next time when there will be offline classes in the college, so you will see this being installed there. So this is the single Stevenson. You must know about these all these instruments which are being used in the observatory. ठीक है ना, तो ये है एक. और दिस इज दी पैन वेपोरीमीटर. ये आपने देखा होगा. आई हैव आल्सो शोन यू इन द ऑब्जर्वेटरी. ये तो देखा हुआ है ना आपने. अंकिता आपने देखा होगा इसमें. यू मस्ट हैव सीन. आज आपकी वहाँ मेरे पास वो स्नैप भी है. तो ये जो है, दिस इज द पैन वेपोरीमीटर. दिस इज देयर इन द ऑब्जर्वेटरी. इसके साथ हम वी मेजर द एवेपोरेशन ड्यूरिंग द डे, पर्टिकुलर डे
की जो evaporation. So these are the different instruments which are being set or being installed in the observatory. These are the common instruments. So this is the ordinary rain gauge. So this we are having ordinary rain gauge that is of a brass color. ठीक है ना, brass color and brass metal का है ये. तो this is with us and that has been also set in the observatory. तो इसमें तो we measure the rain. This is the ordinary rain gauge. This pyrometer we don't have. ठीक है ना, the soil thermometer is also we are having, but we have not placed in the observatory क्योंकि उसमें खराब हो जाता है. तो this is for recording the soil temperature. क्योंकि जो soil temperature that is different than what is outside air temperature. Because there are different temperatures as there. This soil temperature is different than the your air temperature, which we measure this temperature which comes in the. Generally, you have seen that whenever you see the weather, what are the weather conditions today. So that temperature which is given maximum or minimum, that is for air temperature is there. So yeah, this is the I'm showing you all this different practicals. This is like that. This is the index exercise. ये देखो लिखा है study of meteorological observatory sites selection and layout. This we have done है ना in the offline class. And measurement of bright sunshine hours. ये जो measurement bright sunshine hours है, we measure with the this sunshine recorder, Campbell sunshine recorder. And then is the measurement of this maximum minimum temperature and soil temperature. Maximum and minimum temperature, these are the thermometers. Maximum thermometer is there, minimum thermometer is there. जो maximum thermometer in that there is the mercury. ठीक है ना, mercury रहता है. So when the temperature rises, that this mercury column also rises. But when the temperature comes down, that doesn't come down. ठीक है ना, with that we measure the maximum temperature. Or that minimum temperature is that in the minimum temperature this alcohol is used. You must be knowing this minimum temperature. Or with this जो alcohol है, so that shows the column of the alcohol shows the minimum temperature. तो ये है. Then measurement of wind speed, with जो measurement of wind speed है, we measure with the this I have told you with the cup anemometer, and direction with the wind vane, and preparation of wind rose. ये नहीं है, ये है कि wind का जो flow है उसको आपने draw करना है. तो ये this is not मतलब practical, this is not actually feasible to draw this wind rose. Then determination of vapor pressure, then relative humidity and dew point temperature. So yeah, this relative humidity we are having one this hygroscopometer is there with us in the lab. So with that we measure the relative humidity. ठीक है ना. Then measurement of rainfall. ये rainfall I have told you that we are having one this simple this rain gauge. Ordinary rain gauge. Simple means ki ordinary rain gauge. So with that we measure the rainfall and evaporation, which I have told you. This is the US span of porimeter. With the US span of a porimeter, we measure the evaporation. Or analysis of rainfall data of climatal studies. This is a very but the higher level job. So this we cannot do in this laboratory or at this place, okay, because that this data is filled in the computer system, or उससे वो then they analyze that data. ठीक है ना. तो that we cannot do here in the our college level or at our laboratory level. This is done at the where these meteorology labs are set up. Like this, you must have आपने ये भी सुना होगा कि one this the major this जो practical lab है, that is at Indian Meteorological Observatory. Yes, sir. जो है that is at पूना. इसका नाम आपने सुना होगा, Indian Meteorological Observatory. Then मैं estimation of heat indices ये भी नहीं है. This is also not this practical. Sorry, instruments are with us.
Then estimation of potential evapotranspiration. This evapotranspiration means the transpiration which is transpiration is from the plants. So that we don't have also in our lab. तो ये these are the practicals which are being मैंने आपको वो भेजे भी हैं. तो this is this study of meteorological observatory. We will go one by one. ये देखेंगे ये मैंने आपको कराया हुआ है length. I have told you and you have also got noted in the class. और ये जो दूसरा है ये जो मैंने आपको बताया था कि किस किस जैसे हमारी ये ऑब्जर्वेटरी है उसके किस डायरेक्शन में कहाँ पे ये डिफरेंट है. ये सॉइल थर्मामीटर हमने जो लगाए हुए हैं वो इसी हिसाब से लगाए हैं. ऑर्डिनरी रेन गेज ये भी ऐसे ही है. स्टीवनसन स्क्रीन की हमने जगह छोड़ी हुई है. और ये जो अनीमोमीटर है ये हमने पिलर के ऊपर लगाया हुआ है. सनशाइन रिकॉर्डर हमने लगाया नहीं हुआ लेकिन हमारी लैब के अंदर है. ठीक है ना. और ये विंड वेन जो है ये भी हमने उसमें ऑब्जर्वेटरी में लगाई हुई है. और स्टीवनसन स्क्रीन डबल है. ये डबल नहीं हमने लगाया हुआ. वी ओनली हैव दी सिंगल स्टीवनसन स्क्रीन. और दिस सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज ये भी हमने वहाँ पे लगाई हुई है. और ये जैसे ग्रॉस मिनिमम थर्मामीटर. ये ग्रॉस मिनिमम थर्मामीटर ये नहीं है हमारे पास है एक्चुअली मैक्सिमम थर्मामीटर एंड मिनिमम थर्मामीटर. और दे जो मैक्सिमम थर्मामीटर मिनिमम थर्मामीटर दे आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन दी सिंगल स्टीवनसन स्क्रीन. ये जो लिखा है ना ये स्टीवनसन स्क्रीन सिंगल. इसके अंदर इसको लगाया जाता है. तो वी आर हैविंग दोस मैक्सिमम थर्मामीटर मिनिमम थर्मामीटर लेकिन हमने उसमें लगाया नहीं है अभी. और ये पैन वेपोरीमीटर दैट इज बीइंग दैट हैज बीन इंस्टॉल्ड देयर. ठीक है ना. तो ये जो है ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आर विद अस एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन इंस्टॉल्ड फिक्स्ड इन दी ऑब्जर्वेटरी. अब आप जैसे ये मैं कुछ एक इसमें आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सनशाइन रिकॉर्डर है इसी के बारे में बता रहे हैं. ये आप इसमें देख लेना कि एवरीथिंग इज मेड क्लियर इन दैट. तो ये इसका सारा है कि हाउ डू यू हैव टू फिक्स दिस इंस्टॉलेशन कैसे करनी है सनशाइन रिकॉर्डर की. देन ये है आपका ये मैं आपको बताता हूँ आगे. हाँ ये है. दिस इज द एक्चुअल सनशाइन रिकॉर्डर. ये ऊपर इसके बॉल होता है. देन जिस मेटेलिक बॉल इज देयर. और ये जो है ये यहाँ पे इसके ग्रूव्स बने हुए हैं. और इसके अंदर जो है वी फिक्स द स्ट्रिप. और उसके वो दैट इज डिमार्केटेड. उसके ऊपर डिमार्केशन की हुई है. उससे हम देखते हैं ये है दीज आर द स्टेप्स विच आर बीइंग यूज्ड इन दिस सनशाइन रिकॉर्डर. तो ये एक है. देन और ये इसका है रिकॉर्डिंग कि आपको रिकॉर्डिंग जो करनी है मॉर्निंग इवनिंग में. देन मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर एंड सॉइल टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया कि व्हाट आर दी ये इसका बताया होगा टेम्परेचर. सर ये थर्ड प्रैक्टिकल है. हाँ ये थर्ड है. ये इसमें लिखा है मैंने आपको जो ना उसकी डेट भी बना के भेजी हुई है प्रैक्टिकल. बट उसमें सर सेकंड प्रैक्टिकल नहीं लिखा हुआ आपने. नहीं लिखा हुआ है प्रैक्टिकल. कौन सा प्रैक्टिकल? नहीं सर नहीं लिखा हुआ आपने. सर आपने ना जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है ना वही सेम आपने सेकंड में बोला हुआ है कि रो में आपने करवाया था. अच्छा नहीं डेट्स तो मैंने लिखी है. नहीं लिखी हुई. चलो मैं उसमें देख लेता. मैं बता दूंगा आपको. सर लिखी है. हाँ मैं बता दूंगा. ये को देखो ये मैक्सिमम थर्मामीटर है. ये मैक्सिमम थर्मामीटर ये ऐसा ही है. दिस इज विद अस. ये मैक्सिमम थर्मामीटर है. देन दिस इज द मिनिमम थर्मामीटर. और इसमें मैंने बोला कि आपको ये जो रहता है ये वाली जो है इसमें दिस फनल टाइप जो इसमें रहती है. जैसे आपने ऑर्डिनरी थर्मामीटर देखे ही हैं जो ह्यूमन थर्मामीटर रहते हैं बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए. तो ये इसमें मरकरी रहता है. तो इसमें भी मरकरी है. दिस इज द मैक्सिमम थर्मामीटर. ये इसके अंदर यहाँ पे मरकरी रहता है. ठीक है ना. और ये जो मिनिमम थर्मामीटर है इसमें ये जो है ये वाला जो पोर्शन दिखाया है येलो टाइप तो इसमें अल्कोहल रहता है. ठीक है ना. दिस अल्कोहल इज देयर. और ये ड्राई बल्ब थर्मामीटर है. देन दिस इज वेट बल्ब थर्मामीटर. और ये जो है ये दिस इज दी ये सिंगल स्टीवनसन स्क्रीन जो वाला लिखा हुआ है. और ये इसकी जो है ये बॉक्स जो है हमारे वहाँ पे जहाँ हम बैठते हैं ये बॉक्स वहाँ पड़ा हुआ है. ये बॉक्स को हमने वहाँ लगाना है और इसका ये हमने फ्रेम वगैरह बना लिया हुआ है. ठीक है ना. अभी नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे कॉलेज में तो यू विल फाइंड दैट इन दी ऑब्जर्वेटरी.
और ये है इसका रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है ना। और ये है कि मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड, ये भी जो है मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड, ये इसका बताया होगा, ये कप अनीमोमीटर है इसके आगे। हाँ, ये जो है ये मैं कप अनीमोमीटर है, इसकी स्पीड के हिसाब से ये जो है वेन है, सॉरी ये विंड डायरेक्शन का है, ये विंड डायरेक्शन है। ये विंड डायरेक्शन जो वेन जैसे आपने देखा होगा हमारे वहाँ हॉस्पिटल में ऐसे ही लगा हुआ है कि जो ये एरो पॉइंट है, ये मतलब है कि ये शो करता है कि किस तरफ से विंड आ रही है और किस तरफ जा रही है, ठीक है ना। ये इसको ये शो कर देगा। और ये भी उसका ही है, सॉरी। और ये ड्राई बल्ब थर्मामीटर, वेट बल्ब थर्मामीटर का है। आप इसको एक बार देखो कि अभी यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, आपको कैसे मैं कराऊँ साहब ये। और इसमें काफ़ी मैथमेटिकली टाइप है, आप वो वाला ना करना, मैं बता दूंगा आपको जो जो करना है, मैंने भेजा हुआ है, लेकिन चलो मैं एक बार फिर भेज दूंगा। और ये है मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, है ना, वेपोरेशन। रेनफॉल का बड़ा इजी है दिस, जो ऑर्डिनरी रेन गेज है, ये लिखा ऑर्डिनरी रेन गेज इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 पार्ट्स। फनल, ये ऐसे ही है, इसमें फनल है, एक रिसीवर है, जो फनल है उसके थ्रू जो पानी है, जो बारिश का पानी है वो रिसीवर में आ जाता है नीचे। और देन यस इसकी बॉडी है, देन बेस है, और फिर मेजरिंग सिलेंडर है, इसके अंदर ही रखा हुआ है मेजरिंग सिलेंडर। जो रिसीवर के अंदर बारिश आती है उसको सिलेंडर में मेजर कर लेते हैं कि कितनी बारिश ड्यूरिंग द 24 आवर्स पड़ी है, ठीक है ना। आप वहाँ हो तो हम करके मैं आपको बता दूँ। और ये है जो हम जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये इस वेरी इम्पोर्टेंट, ये जो है जो आपका ये दिस इज दी मतलब ये मेजरमेंट ऑफ एवेपोरेशन, इसको पैन एवेपोरीमीटर बोलते हैं, पैन एवेपोरीमीटर। तो इसमें ये देखोगे कि वाइट कलर का है, और इसमें जो पार्ट्स हैं इसके, ये देखो जो है मेन इसके जो पार्ट्स हैं इसमें, ये पार्ट्स जो हैं, ये लिखा है कि पैन वेपोरीमीटर, ये बड़ा सा राउंड सा जो वाइट कलर का है डायमीटर का बना हुआ, तो दैट इज द पैन वेपोरीमीटर। और एक इसमें स्टिल वेल है। स्टिल वेल मीन, वेल जो है स्टिल ही है, इसके अंदर जब हम पानी इसमें भरते हैं पैन वेपोरीमीटर में, तो पानी इसके अंदर भी आ जाता है स्टिल वेल के अंदर। और एक मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है ना, वो अलग से हमने रखा हुआ है। और देन थर्मामीटर भी इसके साथ लगा देते हैं, जहाँ वुडन फ्रेम है, वुडन फ्रेम के ऊपर इसको रखते हैं, और ऊपर इसके वायर मैश है। इसका एक सीधा सा फंडा ये है कि जब पानी जब हम पैन में भरते हैं, जैसे आप आपने जब भी आप आजकल जैसे बहुत सी सन रेडिएशन इज, लॉट ऑफ सन रेडिएशन इज देयर, और सन इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा, आपने देखा कि टेम्परेचर इज आल्सो राइजिंग। तो ये इसके इससे पानी से एवेपोरेशन होती है। तो होता क्या है कि व्हेन दिस वाटर इज पुट इन द पैन वेपोरीमीटर, तो दैट आल्सो कम्स इन द स्टिल वेल। मैं आगे बताता हूँ, इसको स्टिल वेल के अंदर आ जाता है। और स्टिल वेल है दैट इज ग्रेजुएटेड, उसके ऊपर निशान लगे हुए हैं, तो पता चल जाता है कि पानी का लेवल इसमें इतना है। और जब एवेपोरेशन होगी तो दैट वाटर लेवल गोज डाउन, तो हमें पता चल जाएगा। तो देन विद द हेल्प ऑफ दिस मेजरिंग सिलेंडर, ये जो मेजरिंग सिलेंडर लिखा है ना, तो विद द मेजरिंग सिलेंडर वी पुट अप, वी पुट वाटर इन दिस मेजरिंग सिलेंडर, देन पुट इट इन द स्टिल वेल। फिर हम उस लेवल तक ही उसको कर देते हैं जिस लेवल पे हमने इसको पहले रखा था स्टिल वेल में। तो जितना पानी उसमें डलेगा, दैट द क्वांटिटी विच विल बी यूज्ड, है ना, फॉर कम टू दैट लेवल, इट मीन्स कि दैट टाइम दैट अमाउंट ऑफ evaporation हैज बीन डन, हैज गॉन इन ड्यूरिंग द दैट डे। मतलब ये पता चल जाएगा कि कितना पानी वेपोरेट, जितना हम पानी उसके ऊपर डालेंगे उसी लेवल पे आने के लिए, तो वो मेजर करता है कि कितनी एवेपोरेशन हो गई है। तो ये एक्चुअल में यही है, इसका जो फंडा है वो ये है। और ये बाकी ये देखोगे आप इसमें, ये है, ये दिस इज द स्टिल वेल। ये आपने आपको पता नहीं आपने जाके उसमें ध्यान से देखा हुआ है कि नहीं, ये जो हमारा ये वेपोरीमीटर है इसके अंदर ये स्टिल वेल है। जब हम पानी इसमें भरते हैं, यहाँ पानी आता है, तो ये नीचे से इसके होल है, तो पानी इसके अंदर भी चला जाता है। और इसके अंदर जो है यहाँ पे जो है इसमें निशान लगे हुए हैं, और जब पानी इसमें भरेंगे तो वो कह लो यहाँ तक पानी आ गया, ये मैं जैसे एरो कर रहा हूँ, यहाँ तक पानी आ गया।
ठीक है ना। अब जब वेपोरेशन वो करो यहाँ तक है पानी, ये मैं जहाँ एरो कर रहा हूँ, और जब व्हेन दे ड्यूरिंग द डे एंड इन द इवनिंग व्हेन वी विल मेजर कि हाउ मच वाटर हैज बीन वेपोरेटेड, तो इसका जो लेवल है दैट कम्स टू डाउन, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सो यहाँ आ गया जहाँ एरो देखा ना आपने। और फिर हम क्या करेंगे कि देन देयर इज ए मेजरिंग सिलेंडर इज देयर, और इसमें पानी डालेंगे इसको देखने। तो वो जो मेजरिंग सिलेंडर है दैट शोज कि उसमें भी ग्रेजुएशंस लगी हुई हैं। तो जब वो उसमें पानी डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतना, जब हमारा ये पानी यहाँ तक था जो मैंने जैसे एरो दिखा रहा हूँ, और यहाँ आ गया जी नीचे, और इसके फिर हम जब उसमें पानी डालेंगे इसको यहाँ तक लाने के लिए, तो जितना पानी डला है, the quantity which has been have been used to get into the original level, ठीक है ना। तो वो इसका मीन्स कि दैट इज द evaporation ड्यूरिंग द डे, ये है इसका। और ये नीचे वुडन फ्रेम है, ऐसे ही हमने वुडन फ्रेम के ऊपर इसको रखा हुआ है, और ये इसको रेस किया हुआ है सॉइल से। सॉइल से मतलब जो नीचे से, क्योंकि नीचे की हीट ना आए, क्योंकि ये रिजिडी फंडा ना, और इसको वुडन रखा है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई इट इज यूज एज वुडन, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वुडन का वो नहीं यूज राइज नहीं होगा। लेकिन अगर हम मेटल का को रखते हैं तो दैट आल्सो अफेक्ट्स द एवेपोरेशन, लेकिन हमें एक्चुअल रीडिंग नहीं आएगी। तो इसलिए दिस इज, और ये आपने देखा कि दिस इज द वाइट कलर, और ये अंदर में से भी वाइट कलर ब्लैक कलर का होगा तो इट विल अब्सॉर्ब लॉट ऑफ हीट, और इससे एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। ये सब कुछ चीज़ें जो है ये अंडरस्टैंडिंग की हैं कि why it is white color, then why this wooden box is used, and then why it is kept 15 centimeter above the ground level, ठीक है ना। तो ये सब जो है these ये है जो मैंने आपने देखा भी हुआ है, और मैंने इसको आपको इस पे भी दिखा दिया है, आई हैव शोन यू हियर। तो ये है सब रीडिंग मेजर करने के लिए। ये जो रेनफॉल डाटा है या क्लाइमेट स्टडीज, ये मैंने बोला कि दिस इज नॉट प्रैक्टिकल feasible in our laboratory। इसका जो एनालिसिस है वी कैन नॉट डू इन दी लैब इटसेल्फ, हमारे पास नहीं है। दिस इज डन एट द इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो है एट पूना, ठीक है ना, वो इसका एनालिसिस करते हैं। और देखियो कि ये मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये आपने देखा होगा जहाँ आपकी क्लासेस लगती थी, वहाँ पे वन दिस बैरोमीटर इज 14 बैरोमीटर, ये हमारे पास है, वहाँ पे लगा हुआ है। You must have seen this 14 barometer. So this is for the measurement of atmospheric pressure. ये है कि this we don't fix in the observatory. This is being fixed in the laboratory. ठीक है ना। तो ये भी है इसमें, ये that is with us, और ये इसका है फार्मूला वगैरह। ये हीट इंडिसेस का नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव एनी दैट इंस्ट्रूमेंट विद अस। ये मैं कह, दिस इज दी योर लास्ट एस्टिमेशन ऑफ पोटेंशियल वेपो ट्रांसपीरेशन, ठीक है ना। ये एस्टिमेशन है, और इसके लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो डोंट हैव दैट इंस्ट्रूमेंट विद अस कि वेपोरेशन मेजर करने के लिए है, लेकिन वेपो ट्रांसपीरेशन के लिए नहीं। ये लिए टोटल वाटर लॉस फ्रॉम सॉइल सरफेस, ये सॉइल सरफेस से है ना, थ्रू evaporation, and this has water vapors from plant canopies जो मैंने बोला था। लेकिन इसका जो मेजर करने के लिए हमारे पास we don't have the instrument at our, लेकिन हम next time I will inquire from the market कि whether these are available। तो ये है मेकल, I think these are your all practicals जितने भी है इसमें ना, ये सारा इसमें एनालिसिस किया हुआ है। ये नॉट फिजिबल, है ना। ये बाकी ये देखते हैं क्या है। ये तो एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन, ये शायद आपके थ्योरी पार्ट में होगा कुछ ऐसा। और देन ये भी ऐसा ही है, ये दिखाया है कि इंटरसेप्शन एंड एवेपोरेशन कैसे होती है, लीव से ट्रांसपीरेशन कैसे होती है। ये आपके उसमें मैनुअल में आप इसको देख सकते हैं। बस दिस इज ऑल। तो यही है कि मेरे ख्याल आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। और बाकी जो वो डेट्स है ना वो मैं आपको भेज देता हूँ। कुछ आप क्या कह रही थी अंकिता, मैं समझा नहीं, वो क्या नहीं है आपके पास अभी है अंकिता?
हेलो, सर सारी डेट्स हैं। डेट्स हैं, हाँ, यस अच्छा अच्छा। सर, पर आपने ना एक प्रैक्टिकल में किया हुआ है कि आपने एज इट इज करके आपने वो ही नीचे सेम डेट फिर से दे दी हुई है अलग से। अच्छा अच्छा, चलो मैं देख लेता हूँ। वो मैंने मेरे ख्याल हाथ से कोई बना के भेजा हुआ है ना आपको। सर आपने एक स्टार्टिंग डेट दी हुई है, एक एंडिंग डेट दी हुई है कि प्रैक्टिकल की। अच्छा अच्छा, चलो मैं देख लेता हूँ। आई विल चेक अप वेरीफाई की व्हाट इज देयर। यस ठीक है सर। ना, तो ये है, दिस इज जितना भी है आपके प्रैक्टिकल, क्योंकि फिजिबल नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ दिस कोविड की ऑनलाइन क्लासेस हैं। नहीं तो मैंने यस तो सर। सोचा था कि आपको ऑब्जर्वेटरी में भी लेके जाना था, वहाँ गुरदासपुर में भी कई जगह, बट दैट इज नॉट फिजिबल। ठीक है ना, तो वी हैव टू कोप अप विद दी सर्कमस्टांसिस, जो सर्कमस्टांसिस चल रहे हैं उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये है, और बाकी मैं जो आपका है, सॉरी निकल गया, बाकी सर आपका जो उसके है, जो मैं आपका जो थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड सर्विसेज जो ले रहा हूँ, उसमें उसमें क्या है कि वो एक ही आपका ओनली वन टॉपिक इज लेफ्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक यस है ना, सर। उसमें एक वर्ल्ड यस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का था, एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है ना, एक वो था, और वो आई हैव डिस्कस्ड उस दिन। मेरे को शायद अगर उसको रिपीट करना होगा तो आज आपका है, अभी इसके बाद भी है शायद लेक्चर ना, यस या नहीं तो उसको मैं कल लूंगा। आई विल टेक दैट टुमारो, क्योंकि यस अभी सर। इट इज़ नॉट पॉसिबल। कल मैं ले लूंगा उसका, और उसमें जो उसमें कुछ रिवीजन भी कर लेंगे हम, जो कुछ जैसे कि आपने अंकिता ने नहीं लगाया ना, डब्ल्यूटीओ का नहीं मेरे कल लगाया हुआ, यस गैट का सर। नहीं लगाया हुआ, गैट जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, और डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इसका शायद आपने, और एक जो लास्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कॉपी राइट्स आते हैं। आपने देखा होगा कि पेटेंट भी होता है, कॉपीराइट्स भी होते हैं, ट्रेड मार्क जो होते हैं। ठीक है ना, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग है। उसका मैं टुमारो आई विल टेक दैट क्लास एंड यू मस्ट अटेंड दैट क्लास, दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है ना, फ्रॉम और प्रैक्टिकल, सॉरी, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट सर ऑफ व्यू आल्सो। ठीक है ना, कि लास्ट टाइम आई थिंक राधिका वाज देयर, लेकिन मैं, मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी इसके तक। यस सर तो और उसकी रिकॉर्डिंग भी, जो मेरे लेक्चर की है ना, वो रिकॉर्डिंग भी मैंने देखा था कि रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई थी उसकी। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाएंगे। तो कल मैं मतलब जो आपका ये एक दो टॉपिक्स हैं जो लास्ट में रह गए, यस सर। तो वी विल कवर दैट, और उससे तो बाकी सिलेबस उससे कवर हो जाएगा। और बाकी मैं देखूंगा कि अभी आपका जो ना, सिंस आप अप डेट नहीं है आपके कि व्हेन योर क्लासेस विल बी ऑफ एंड वन विल बी योर एग्जाम्स विल बी देयर, और मोड भी क्या रहना आपका एग्जाम का, ऑनलाइन रहना ऑफलाइन, सिंस गवर्नमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट हैज़ नॉट डिसाइडेड। ठीक है ना, अभी आपके जो जूनियर्स हैं उनके जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, जो अभी सेकंड की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनका भी कल उसका बायोलॉजी का और उसका पेपर था, दैट वाज ऑनलाइन ओपन बुक था वो। तो कल उनका मैथ का था, जो दोज हु आर आउटेड फॉर मैथ, और ऑन 30th दे आर हैविंग एग्रीकल्चर हेरिटेज। अभी आपका क्या, क्योंकि उनके ये 3 पेपर रह गए थे ना, दे हैव नॉट बीन एबल टू मतलब appear on those exam due to COVID, because यस it सर। was lockdown। तो ठीक है ना, सस्पेंड कर दी थी दिस क्लासेस। तो अभी क्या है कि नाउ वन इज ऑन 30th एंड वन इज ऑन 4th of May, जो दोनों मेरे ही सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर हेरिटेज और रूरल सोशियोलॉजी। अभी लेकिन आपका डिसाइड नहीं किया, तो हो सकता है कि इस आप आफ्टर 30th योर मतलब जो मोड ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम या क्लासेस कब आपकी, आपको छुट्टियां डालनी है या सस्पेंड करनी है, कैलेंडर नहीं आया अभी आपका। यस ठीक सर। है ना, रिवाइज कैलेंडर नहीं आया, तो लेट अस वेट फॉर दैट। ठीक है ना, तो यही था विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। इवन देन मैं आज छुट्टी पे हूँ, इवन देन आई एम टेकिंग योर क्लास। ठीक है ना, मैंने कहा कि आपको चलो व्हाट्स एवर आई कैन डू आई शुड हेल्प यू। ठीक है ना, तो बाकी इससे सर जो जो कंटेंट है, हाँ बोलिए बोलिए। सर जो मार्केटिंग की जो आपने जो असाइनमेंट सेंड की हुई है ना सेकंड, हाँ
हाँ हाँ सर वो फिर से आप सेंड करना सर, हमें ना राइटिंग समझ नहीं आ रही। अच्छा वो समझ नहीं आया जो सेकंड असाइनमेंट। यस सर। अच्छा अच्छा, वो चलो मैं उसको उस पे लिख के भेज दूंगा, उस पे व्हाट्सएप पे टाइप करके भेज दूंगा। ओके सर। हाँ, और ये जो पेपर्स हैं, जो ओल्ड पेपर्स हैं, ये भी मेरे पास जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना इसके। ये और अपनी ये असाइनमेंट सबमिट कर लेना और प्रैक्टिकल कॉपीज बना लेना, वो मैं दोबारा भेज देता हूँ आपको, क्योंकि पता नहीं आप कैसे लेते हैं आपके प्रैक्टिकल्स भी, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट व्हाटसोएवर द कंडीशंस आर देयर। ओके देन, शुड आई स्टॉप हियर ना? यस सर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।